एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ पिता सब इंस्पैक्टर श्री दीवान चंद शर्मा जी दे घर माता श्रीमती चंपावती जी दी कुखों बटाला विखे 16 मार्च 1959 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਲਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ LIC ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ USA ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਣਪਤੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਵੈਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਧੀ ਰਾਮਪਾਲ, ਵੈਭਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੇਜ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਪਾਵਤੀ ਹਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। तो अब संसार से बचकर नहीं रहूंगा, इसलिए रोता था। और संसार प्राणी घर वाले हंसते हैं कि हमारी बच्ची का जन्म हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि प्राणी को जितना भी हो सके सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग और विवेक यही प्राणी के दो निर्बल हैं। जिनको ना सत्संग है ना विवेक है, वो प्राणी आंखों के होते हुए अंधे के समान माने जाते। शास्त्र कहता है बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के प्राणी को विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि ये 84 लाख योनि से भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य योनि बनती है। इसमें भी विद्वान होना, उच्च कुल में जन्म लेना, ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। ईशान विद्या तपोदानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ये मृतलोके वारमुता मनुष्य रूपेण मृगा चरति। ईशान विद्या तपोदानम, ये प्राणी को मनुष्य तन तो मिल गया है, क्यों? ये पूर्व जन्म के कर्म से मिला है।
जब ही तो कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर रहा, कर्म ही प्राणी का सबसे बड़ा देवता है। जैसा जैसा प्राणी ने कर्म किया वैसा ही भोग रहा है। ईशान विद्या तपोदान, मनुष्य तन मिल गया, लेकिन मनुष्य तन पाकर कोई शुभ कर्म नहीं किया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को अन्न नहीं दिया। देखो ये सुबल काम में ये भी प्राणी नहीं किया तो क्या है? वो तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान। ईशान विद्या तपोदान, कुछ तप नहीं किया, कुछ परोपकार नहीं किया। शास्त्र कहता है कि परोपकारम सर्वम धर्मम, परोपकारी प्राणी का सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए जितना भी हो सके प्राणी को परोपकार करना चाहिए। किसी के सुख में ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन दुख में तो जरूर जाना चाहिए। वृक्ष गवो न फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के काम के साधु धरा शरीर। आप कहोगे संसार कोई परोपकार नहीं, अरे संसार में परोपकारी ना हो तो पृथ्वी रुके ना, पृथ्वी जैसे मिल जाए। संसार का भी परोपकारी है, वृक्ष परोपकारी होते हैं, नदी परोपकारी है, वो अपने लिए नहीं दूसरे के परोपकार करती है। ऐसे ही अच्छे प्राणियों का भी शरीर परोपकार के लिए होता है। वो स्वयं ना खाकर दूसरे को खिलाते हैं, वो स्वयं अपने दुख सहन करने के लिए दूसरे को सुख देते हैं, वो कहते परोपकार। इसलिए जितना भी हो सके प्राणी को परोपकारी बनना चाहिए। आगे की व्याख्या बताते हुए भगवान कहते हैं, गरुड़ पुत्र एक हो लेकिन नेक हो, पुत्र अनेक है, अपनी माता पिता की जीते जी सेवा नहीं करते और मरने के बाद कोई क्रियाकर्म नहीं कराते, वो पुत्र नहीं माने जाते, वो पुत्र माने जाते हैं। उनके हाथ से जल बिना भी सुराग के समान है। चाहे वो कोई भी वर्ण के, हमारे शास्त्र ने 4 वर्ण बताए हैं, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 4 वेद हैं। इनमें सभी में सार लिखा होता है कि जिस प्राणी के घर में अगर माता पिता है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले माँ का नंबर आता है, जिससे माँ की सेवा करनी है। माँ पिता ने इतना रेट चढ़ाया हुआ के ऊपर तो जन्म जन्मांतर कभी चुका नहीं सकता है। मात देवो भवो, पितृ देवो भवो, गुरु और असि 4 देव साक्षात हैं। इनकी पूजा करने से, इनकी सेवा करने से भगवान कृष्ण हो जाते हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है, जिस प्राणी के घर में माता पिता हैं उसको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसके घर में माता पिता लग तीर्थ करना नहीं चाहिए, जिसके घर में माता पिता हैं उस प्राणी को कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े तीर्थ उसकी माता पिता उसके घर में बैठे हुए। आज क्या है, आज का समय माता पिता को देखो पूछते नहीं है और तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान कुछ प्राणी की तीर्थ यात्रा को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि पहले तुम अपने माता पिता की सेवा करो, इसके बाद मेरे घर आओ। एक भगत था, देखो वो रोज ही अपने माता पिता की सेवा करता था, साथ में भगवान के घर जाता था। एक दिन उसको ज्वर हो गया, बुखार हो गया। अब देखो माता पिता की सेवा तो उसने घर में की, लेकिन भगवान के घर नहीं गया। भगवान ने देखा कि आज मेरा भगत नहीं आया। शास्त्र कहता है कि भगवान भगत में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को वश में कर लेना, भगत के वश में है। भगवान इतनी शक्ति है सेवा में कि भगवान भगत के वश में हो जाते हैं। भगवान ने देखा कि आज मेरा भगत नहीं आया। रुक्मिणी जी आ गई थाल लेकर, 12 बजे का समय हो गया कि महाराज भोग पाइए, भोग का समय हो गया। भगवान के रुक्मिणी जी रुको, क्यों? आज मेरा भगत नहीं आया, चलो बेचारा आज नहीं आया तो मैं उसके घर जाकर उसके दर्शन कराता हूँ। देखो भगवान स्वयं दौड़े दौड़े और अपने भगत के घर गए। दरवाजा खटखटाया, भगत जी आज तुम मेरे घर नहीं आए, चलो आज मैं तुम्हारे घर आ गया। भगत जी कहने लगे, प्रभु रुकिए, आपका स्वागत है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मेरी माता पिता की सेवा चल रही है। माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाती है
तो मैं दरवाजा खोलता हूँ। देखो माता पिता की सेवा कब हुई, और भगत जी ने दरवाजा खोला और भगत और भगवान दोनों आपस में मिले। इतनी शक्ति है माता पिता की सेवा में। इसलिए हर कोई को जीते जी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और मरने के बाद सभी कर्म कराने चाहिए। शास्त्र ने बताया कि बालकपन में अगर जो भक्ति की जाती है वो मक्खन जैसी होती है, जवानी में भक्ति की जाती है वो दही जैसी बन जाती है, और बुढ़ापे में जो भक्ति की जाती है वो लस्सी बन जाती है, कोई काम नहीं आती। इसलिए प्राणी को जितना भी आज जब बुढ़ापा आएगा, जब मैं भगवान का नाम लूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, अरे प्राणी बुढ़ापे में तो अपने शरीर ही सामना मुश्किल हो जाएगा, तो प्रभु की भक्ति क्या करेगा। प्रभु की भक्ति करनी है तो तू आज से शुरू कर दे, बालकपन से शुरू कर दे, जब ये अंत समय ही तेरे काम आएगा। क्योंकि प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम ही एक सत्य है। बाकी संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सब असत्य है, लेकिन हमारा स्वभाव बन गया कि हम असत्य के पीछे भाग रहे हैं और सत्य को छोड़ रहे हैं, जबकि सत्य को पकड़ना चाहिए। प्रभु का नाम सत्य। जब प्राणी की अंतिम यात्रा जाती है तो पीछे जाने वाले बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। देखो, क्योंकि राम का नाम ही एक सत्य है, बाकी संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सब असत्य है। इसलिए प्राणी को जितना भी हो सके सत्य का पीछा करना चाहिए। आगे की व्याख्या सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान ने देखो प्राणी को सबको दे दिया और इतना रचा बचा है प्राणी कि प्रभु का नाम लेना ही भूल गया। प्रभु का नाम लेता है लेकिन एकाग्र भाव से नहीं लेता, एकाग्र भाव से, क्योंकि मन प्रभु में होना चाहिए। तन जहां भी हो कोई बात नहीं, लेकिन मन प्रभु में होना चाहिए। उसी की भगवान सुनते हैं। अंतरात्मा की बात को प्रभु सुनते हैं। अजामिल ने भगवान को पुकारा, भगवान ने श्रवण किया, सुना, रक्षा के लिए भेजा यमदूतों को। गज ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी भी रक्षा की। जो अंतरात्मा से पुकारा जाता है तो भगवान जरूर उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अभी ये 6 चीजें प्रभु ने अपने हाथ में रखी। एक समय की बात है, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो भरत जी महाराज उनको मनाने के लिए चित्रकूट पर गए। भरत जी महाराज श्री राम जी से कहने लगे, भगवान आप 14 वर्ष तो क्या, मैं सारी उम्र इस वन में रहूंगा, आप अपनी अयोध्या की गद्दी में विराजमान हो। तो भगवान स्वयं भरत जी से कहते, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक रहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, यश अपयश विद के हाथ। देखो ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी, बाकी सबको दे दिया, धन दौलत जितने कुछ चाहिए सबको दे दिया। लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विद के हाथ। 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी। लाभ हान, सभी संसारिक प्राणी चाहते हैं कि हम संसार में आए हैं, हमको लाभ हो, लाभ, हानि नहीं चाहता कोई, लेकिन फिर भी एक दिन हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है। यश अपयश सभी चाहते हैं, हम संसार में आए हैं, हमको यश मिले, हमको अपयश कभी ना मिले, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आता है अपयश मिल जाता है, बुराई मिल जाती है। जीवन मरण सभी चाहते हैं। 100 साल की उम्र हो जाती है फिर भी प्राणी जाने का मन नहीं करता है। ये तो उम्र ही छोटी थी, इसलिए 6 चीजें क्या, जीवन मरण सभी चाहते हैं हम जीवित रहे, लेकिन एक ने फिर भी जाना पड़ता है। 6 चीजें प्रभु ने अपने हाथ में किए, बाकी सबको दे दिया। और देखो इतना रचा बचा है प्राणी संसार में कि प्रभु का नाम लेना भूल गया। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए कि वही मुक्ति का कारण है और कोई दूसरा नहीं।
हमारे युग 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में पूजा पाठ तब करना पड़ता है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में योग। लेकिन अब केवल प्रभु का नाम ही श्रवण करे, प्रभु का नाम श्रवण करने से प्राणी के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कोई युग नहीं, कलयुग जैसा युग नहीं। इसलिए प्रभु का नाम ही जपना चाहिए। आगे की व्याख्या सुनाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, हर पुत्र को अपने माता पिता का भक्त करना चाहिए। गरुड़ प्राण श्रवण करनी चाहिए। हमारे 18 प्राण हैं, इनमें से गरुड़ प्राण, गरुड़ प्राण को श्रवण करें, गया श्राद्ध कर रहे हैं, बटसून श्राद्ध करें और अपने माता पिता की अस्थि को गंगा में प्रवाह। शास्त्र ने यहाँ तक बताया है कि जिस प्राणी की अस्थियां 10 दिन के भीतर गंगा में प्रवाह हो जाती हैं तो उनका पुनः फिर जन्म नहीं होता, वो प्राणी मुक्त हो जाता है। इतनी शक्ति है गंगा में, गंगा में प्रवाह है। शास्त्र कहता है कि एक बहुत बड़ा शिकारी था, वो रोज ही शिकार करता था और उसका भक्षण किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर ने शिकारी को मार दिया और उसकी हड्डियां उस जंगल में पड़ी रही। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि एक मांस का लोभी गिर उस हड्डी को उठाकर ले गया और संयोगवश ऐसा हुआ कि वो हड्डी गंगा में जाकर गिर गई। तो पहले तो उस शिकारी की आत्मा थी वो नरक में गई थी, लेकिन गंगा में गिरने से अस्थियां उसकी आत्मा और वैकुंठ को धाम चली गई, वैकुंठ धाम। इसलिए गंगा में इतनी शक्ति है कि प्राणी कितना भी बड़ा पापी हो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए गंगा में अस्थि को प्रवाहना चाहिए। उस समय क्या करे? उस समय मेरा नाम लेवे। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी पापी में पाप करने की नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये महामंत्र है। शास्त्र ने बताया है कि प्राणी अंत समय अगर इस मंत्र का जाप करते करते अपने प्राणों को छोड़ता है तो मेरे धाम को आ जाता है, भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन ऐसा संयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है कि जो प्रभु का नाम लेते लेते ही प्राणी अपने प्राण छोड़ नहीं। उस समय क्या होता है? उस समय हाय हाय का शब्द और मुख से निकलता है। वो कोई धर्मात्मा प्राणी होता है कि जिसके मुख से प्रभु का नाम निकले। तो शास्त्र ने तो यहाँ तक बताया है कि अगर प्राणी प्रभु का नाम ना जपे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव ना जपे, तो उसके कानों में डाले। और इसके कानों में प्रभु का नाम है, जिसके मुख पर प्रभु का नाम है, वो प्राणी कितना भी बड़ा पापी हो वो सीधा ही भगवान के धाम को चला जाता है। आपने अजामिल की व्याख्या श्रवण की होगी। देखो, अजामिल ने जीवन भर कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, लेकिन जब उसका अंत समय आया, उसको लेने के लिए यमदूत आ गए कि चलो भाई अजामिल, तुम्हारा समय हो गया। अजामिल को घबराहट होने लगी। जब कोई घबराहट होती है, कोई विपत्ति आती है, तो किसको पुकारा जाता है? अपने सगे संबंधी, अपने पुत्र को पुकारा जाता है। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा। पुत्र का नाम था नारायण। अरे नारायण, अरे नारायण आओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। अब देखो, नारायण पुत्र ने तो नहीं सुना, लेकिन नारायण भगवान ने सुन लिया। कहते हैं ना, अंत समय की बात को प्रभु जरूर श्रवण करते हैं, क्योंकि अंत समय प्राणी मृत्यु के भय से दुखी हो जाता है और उसकी अंतरात्मा प्रभु में लग जाती है। तो अजामिल ने नारायण को पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन नारायण भगवान ने श्रवण किया तो कहा कि जाओ भाई,
अपने दूतों से कहा विष्णु भगवान ने कि जाओ उस अजामिल को लेकर आओ। दूत कहने लगे महाराज वो अजामिल तो बड़ा पापी है, उसने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया और भूखे को अन्न नहीं दिया। आप कह रहे हो उसको बैकुंठ लोक लाओ। भगवान कहने लगे दूतो भाई ऐसा है कि उसने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय मुझे पुकारा है। जो अंत समय मुझे पुकारता है मैं उसके सारे पाप को क्षय कर दूंगा। दूत कहने महाराज उसने आपको लक्ष्मीपति को नहीं पुकारा, उसने तो अपने पुत्र को पुकारा, क्योंकि पुत्र का नाम भी नारायण है। भगवान कहने लगे चलो उसने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन है तो मेरा ही नाम। जिसे अंत समय में ये अनजाने में अग्नि पर पैर पड़ जाता है तो अग्नि क्या करती है, पैर को जला देती है। ऐसे ही अगर अनजाने में अंत समय मेरा नाम प्राणी स्मरण कर लेता है तो मैं उसके सारे पापों को क्षय कर देता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा मेरी छोटी बहन प्रवीण राणी जी क्रिया के उत्ते और फलाने के उत्ते सारे उन्होंने शरदा के फुल भेंट करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। एक इहो जी शख्सियत सी जिदा कहना ते करना जो मर्जी गल्लां करी जाइए बहुत कठिन गल है, क्योंकि जिंदगी दे विच
ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੈ आदरणीय भरजाई जी प्रेम कुमारी जी, अगन चेत मेरे वीर दविंदर शर्मा जी ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵੀਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈ, ਵੀਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ हे परमात्मा तू कितना जुल्म कीता है इस परिवार से, जेड़ा परिवार मेरी साडी भाभी दीन दुखियों की सेवा करते सन, मंदिर गुरुद्वारे दे विच आके उत्थे अपना शीश नवा के अपने परिवार का अते दुनिया का भला मंगते सन। मैं कहांगा मेरे वीर दविंदर शर्मा ने, उन्होंने बच्चों ने 2 साल अथक मेहनत करके कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई हस्पताल, किसी भी तरह का कोई इलाज करने कोई कोताही नहीं की। पर रब वो चीज है जिहड़ा सामने मुंह ते चपेड़ मार के बंदे नूं लै जांदा और अज वो लै गया। मेरे को लफ्ज भी मैं शायद बोल नहीं सकता। कारण मैनू इस परिवार का प्यार हमेशा मेरे नाल रहा। मैं सदा ही दविंदर जी बच्चों तुसी अपने आप को कभी कलिया नहीं समझना। ये जिन्ने साथी तुहाडे कोल आए ने तुहाडे दुख दे समय ते ये भी तुहाडे नाल है ते मैं भी तुहाडे नाल हां। इन्ना कहंदा माफी दा हक करना। जय श्री राम।
गन्धद्वारां राजनां कृष्णां पुष्पं समर्पये नमः। नमः धूपदीपं दर्शये नमः। नैवेद्यं नैवेद्यामि समर्पये नमः। पुनरात्मयं दर्शनां समर्पये नमः। नमः त्वमे महता शान्ताकारं भुजङ्गशरणं पदम्राभ्यां सुरेशं कृष्णाश्रमीं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगमं वन्दे विष्णुवर्णं सर्वलोकैकनाथं नमः। नमः राजनां कृष्णां गणेश्वरी ईश्वरीयं काम्यं भूभ्यं नमः। ईश्वरीयं काम्यं भूभ्यं नमः। विकस्वः मर्दः श्रीमन्त्रः सुविद्यावतो विदग्धये भुजन्मयः किभ्यां नमः। सुरजसुदेवः अवसः कमलं पदं देवी शरण्यां पदं पश्येमापि विजद्रहास्त्रीरं दैवसतं वैसे वही देवितं यदाहि तदनं सर्वं देवास्तार्थिकादलसन्तु नाम पुत्रासुत्रो भवन्ति मानोपदियारि वीक्तारन्तो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुद्रजानीकाख्य मंगलास्तु हरि नमः। शुक्लां वरदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायेत्। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।